on equality, the very first chapter of civics, class 7, and I will be representing you this chapter. Now, what do you mean by equality? First, we have already been through what is equality in class 6. Now, you tell me, what do you mean by equality? Very good. Equality means समान, एक समान. Very good. और कोई? किसी के रिलीजन के पर भेदभाव नहीं करना. ओके, वेरी नाइस. नेक्स्ट. ओके. हाँ, हाँ, जस्टिस फॉर ऑल, इक्वलिटी फॉर ऑल, हाँ ना. ये हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि चाहे वो कितना भी बड़े जाति का क्यों ना हो, इक्वलिटी में ही उनको सजा मिलेगा. अगर कोई गलत काम करते हैं तो, अगर सही करते हैं तो इक्वलिटी में ही उनको अच्छा प्रोत्साहन मिलेगा. वेरी गुड. ओके, वेरी गुड. लेट्स स्टार्ट. आप लोग जानते हैं इक्वलिटी क्या है. हमारे देश में हम लोग बात करेंगे इक्वलिटी का काम क्या है. ओके, इक्वलिटी हमारे देश में कैसे प्रैक्टिस किया जाता है. ओके. ओके, आपके पास बहुत अच्छा नॉलेज है इक्वलिटी के बारे में, पर फिर भी इस चैप्टर खत्म होने के बाद हम लोग आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू understand the importance of the idea of equality and dignity in democracy. You will be understand to equality, you will understand to judge equality as value and its relationship with democracy. You will understand inequality, the role of gender in creating unequal and hierarchical relations in society. You will be understand to link everyday practices with the creation of inequality and question it. You will be understand to identify forms of social inequality, constitutional provisions relating to social justice. Let's start the chapter now. We will be completing 6 or 7 contents in this chapter. First, equality. We will have an introduction. What is equality? And we will take a story from the book, obviously, to know what is equality. Then we will learn what is equal right to vote in our country, and then we will discuss other kinds of equality. What are the other kinds of equality practiced in our country? We will learn what is dignity and how can we recognize dignity. We will learn what is the role of equality in our Indian democracy, Indian perspectives, and then we will discuss the issues of equality in other democracies, in other countries. We will see how equality is being practiced and what are the challenges to equality in democracy. We will learn these things in this chapter. Okay, let's start the chapter now on equality and introduction. Okay, equality and introduction. What is equality? Okay, so as discussed, as someone of you have already told the meaning, what is equality? Equality is the equal treatment of people irrespective of social or cultural differences. We all know that our country is a very vast country, very large country, and numerous people, numbers of people. There are different types of people living in our country, and those belong to different caste, different religion, different, um, we can say, backgrounds. Some are poor, some are rich, some are educated, some are not educated, uneducated, illiterate. So without taking those things into consideration, if we all treat every person as equal, that is equality.
हमारे देश में अगर हम लोग बात करें, बहुत तरह के लोग हैं, दूसरे दूसरे धर्म से आते हैं, दूसरे जाति से आते हैं। कोई छोटे जाति के होते हैं, कोई बड़े जाति के होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, धनी होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, किनके पास बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पावर रहता है, किन्हीं के पास कोई पॉलिटिकल पावर नहीं रहता है। पर किसी को भी किसी भी तरह का हम लोग अगर भेदभाव नहीं करते हैं, सबको एक समान मानते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं इक्वलिटी। ये वाला हम लोग एक बुक से स्टोरी लेते हैं, बहुत ही सुंदर स्टोरी है, और हम लोग देखेंगे कि हमारे इंडिया में कैसे इक्वलिटी को प्रैक्टिस किया जाता है। अच्छा, मुझे बताइए इससे पहले कि आपके पास बुक्स हैं क्या? क्या आपके पास बुक्स हैं? जिनके पास बुक्स नहीं है वो लोग सिंपली जाएंगे प्ले स्टोर में भी, अगर आप लोग गूगल प्ले स्टोर जहाँ से आप लोग गेम्स वगैरह डाउनलोड करते हैं, वहाँ पर भी आप लोग जाकर एनसीईआरटी बुक्स लिखेंगे तो आपको बुक्स आ जाएगा, और आप अपने क्लास के हिसाब से अपने बुक को चूज करके उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। कोई आपको प्रॉब्लम या फिर कोई आपको पैसा भी इसमें देना नहीं पड़ेगा, ये कम्प्लीटली फ्री है। बुक्स हमको अभी तक आया नहीं है, हमारे पास अभी तक बुक्स आया नहीं है जो गवर्नमेंट सप्लाईज रहता है। मैंने छुट्टी से पहले पेरेंट्स को, कुछ पेरेंट्स को बोला था, सारे पेरेंट्स को एक्चुअली बोला था कि आप अपना बुक्स लौटा दीजिए ताकि दूसरे बच्चों को बुक्स मिल जाएगा, पर बहुत सारे पेरेंट्स हमको बुक नहीं लौटाए हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को बुक्स ठीक तरीके से नहीं मिल पाया है। पर फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि बुक्स जब तक नहीं आएगा, हम लोग इंटरनेट से बुक्स जो भी हमारे पास अवेलेबल है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो चलो ये वाला स्टोरी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट, इजंट इट गुड सुजा दैट वी कैन ऑल वोट एज इक्वल सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री? इवन जैन साहब इज स्टैंडिंग इन द लाइन विद अस। यस, गो ऑन कांता, इट्स योर टर्न नाउ। अच्छा, यहाँ पे वोट देने के लिए गए हुए हैं, ओके, कौन? दो मेड, दो सर्वेंट यहाँ पे वोट डालने के लिए इलेक्शंस के पोलिंग स्टेशंस में गए हुए हैं, और वहाँ पे एक जो सर्वेंट है दूसरे सर्वेंट को पूछ रही है कि ये कितना अच्छा है ना सुजा कि हम लोग एक देश के नागरिक की तरह साथ में वोट कर सकते हैं। देखो हमारे पीछे जैन साहब जो उनके मालिक हैं वो भी खड़े हुए हैं, देखो हमारे पीछे अपने हमारे मालिक भी खड़े हुए हैं। तो वहाँ पे जो जैन साहब हैं वो बोल रहे हैं हाँ, और बोल रहे हैं जाओ कांता अब तुम्हारी बारी है, कांता अब तुम्हारी बारी है, तुम जाके वोट करो। ओके, उसके बाद कांता अंदर जाती है वोट डालने के लिए, और वो सोचती है आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज प्रोमिस टू ब्रिंग पाइप वाटर टू आवर एरियाज। वो कहती है कि हमारे एरिया में जो घर घर में पानी पहुंचाएगा मैं उसको वोट करूंगी, ये कांता सोचती है। उसके बाद, ठीक है, उसके कुछ समय बाद जब वोट खत्म हो जाता है तो जो जैन साहब हैं वो बोल रहे हैं वी विल सी यू लेटर कांता, हम आपको मैं तुमसे बाद में मिलूंगा कांता। तो यहाँ पे कांता बोल रही है ठीक है साहेब नमस्कार, और वो बाय कहती है, ठीक है, कांता उसको कहती है साहब ठीक है आप जाइए नमस्ते, ठीक है। उसी दिन शाम को क्या हो जाता है कि उसी दिन को एमडी मसीहा, हम लोग जब डिस्कशन कर रहे थे तुम सो रहे थे क्या? अभी क्लास चल रहा है, तुम्हें प्लांटेशन अभी नहीं करना है, ठीक है, क्लास सुनो उसके बाद तुम मुझे पूछना तुम्हारा क्वेश्चन। ओके, उसी दिन को गुड़िया जो कांता की बेटी है उसका तबीयत खराब हो जाता है, तो वो क्या करेगी, उसकी जो मम्मी है कांता है उसकी माँ, तो उसके पास वो जो दूसरी उसकी सहेली है वो दौड़ के आती है और कहती है कि गुड़िया को बहुत ज़्यादा बुखार हो गया है और तुम्हें कहाँ जाना है, हॉस्पिटल ले जाना है, ठीक है। तो गुड़िया हैज़ बिन रनिंग फीवर एंड हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल, लेकिन आई विल हैव टू फिनिश द वर्क एट साहेब्स हाउस फर्स्ट एंड आस्क फॉर सम एडवांस। तो वहाँ पे गुड़िया सोच रही है कि गुड़िया का तो तबीयत खराब हो गया है और उसको तो हॉस्पिटल लेके जाना है, पर मुझे उससे पहले
जो मालिक है मेरे, उनके घर में कुछ काम ख़त्म करना है और उनसे कुछ पैसा एडवांस में ले लेना है, क्योंकि वो एक महीना काम करने के बाद जो भी उसको पैसा मिलता है उसमें से कुछ पैसा एडवांस में वो ले लेगी, ताकि वो अपनी जो बेटी है, गुड़िया है, उसका तबीयत क्योंकि ख़राब हुआ है, वो क्या करेगी, जाके उसको हॉस्पिटल लेके जाएगी। अब वो घर आती है, घर आने के बाद वो अपनी बेटी से कहती है, ये इसको ले लो, ठीक है, इसमें से कुछ खा लो, तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। वो कुछ लाती है उसके लिए, ठीक है। एंड मैं जब वापस आऊँगी तो हम दोनों साथ में मिलकर हॉस्पिटल जाएंगे। वो अपनी बेटी से कहती है कि मैं जब वापस आऊँगी तो हम लोग साथ में मिलकर हॉस्पिटल जाएंगे, तुम अभी थोड़ा रेस्ट कर लो। ओके, समझ में आया? देन उसके बाद वो जाती है अपने मालिक के पास, तो उसकी जो मालकिन होती हैं वो कहती हैं कि उधर उस कोने में भी सफाई करो, ठीक है, आप हर कोने को ठीक से सफाई करो। और उसके बाद वो कहती हैं कि जो पैसा है वो तो ले लो, पर इसको आदत मत बना लेना। आज तुमको मैंने दे दिया एडवांस, पर ये हर रोज़ तुम मांगना नहीं मुझसे, मैं पैसा तुमको हर रोज़ ऐसे एडवांस में नहीं देने वाली। तो वो कहती है, कांता कहती है, ठीक है मैडम, मैं और नहीं मांगूंगी, नो, ठीक है। ठीक, उसके कुछ मिनट्स बाद वो घर आ जाती है और वो कहती है कि और कुछ देर बेटी, फिर हम लोग ठीक हो जाएंगे। इसका मतलब है कि वो लोग हॉस्पिटल में जा रहे हैं, हॉस्पिटल में ऑलरेडी वो लोग चले गए हैं और हॉस्पिटल में वो लोग लाइन में खड़े हुए हैं, ठीक है। वो लोग लाइन में खड़े हुए हैं क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल, अब अगर आप लोग कभी गए हैं, कोई गए हैं आप लोगों में से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, क्या क्या आप लोगों ने क्या क्या नोटिस किया है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में? बहुत लंबी लाइन रहती है, बहुत भीड़ रहती है, यस। और कुछ? इक्वलिटी रहती है वहाँ पे, कोई भी कितना भी मतलब रिच क्यों ना हो, वो अगर आएगा तो उसको लाइन में लगना ही पड़ता है ना। पर लंबी लाइन तो रहती ही है। ओके, तो ये लोग वैसे ही लंबी लाइन में खड़े हुए हैं और वो अपनी बेटी को बता रही है, अपनी बेटी को कह रही है कि और कुछ देर बेटी, फिर हमारी बारी आएगी और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग भी यहाँ पे, हाँ, हेल्थ हेल्थ का अपना चेकअप करेंगे, ठीक है। उसके ठीक बाद क्या होता है, जो कांता है वो सोच रही होती है, क्योंकि उसी दिन सुबह को क्या हुआ था, उसके पीछे खड़े थे जैन साहब, वो आगे नहीं आ रहे थे। लेकिन जब भी हॉस्पिटल में उनका कभी तबीयत खराब रहता है तो वो क्या करते हैं, तो वो लाइन में खड़े नहीं होते हैं, वो डायरेक्ट जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं और अपना हेल्थ को वो चेकअप कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग दो तरह से देखते हैं, क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो हमेशा इक्वलिटी की बात कर रहा है। जब वोट डालने आते हैं तो उसमें कोई भी, जो हर कोई व्यक्ति इक्वल है, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऑब्वियसली यहाँ पे इक्वलिटी है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल आप लोग जाएंगे अगर, तो वहाँ पे पैसा देकर आप लोग जल्दी से अपना काम करवा सकते हैं। तो इक्वलिटी क्या है आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा, और इनइक्वलिटी क्या है वो भी आप लोगों को समझ में थोड़ा आ गया होगा, कि आप लोग एक जगह पे एक समान अगर ट्रीट किए जाते हो तो आप लोग वहाँ पे कह सकते हो कि ये इक्वलिटी है। ओके, समझ में आया इक्वलिटी? यहाँ पे क्या हो रहा है, कांता जो कि सर्वेंट है और जैन साहब जो कि मालिक हैं, वो दोनों ही एक साथ में एक जगह पे खड़े होकर वोट दे रहे हैं, और ये इक्वलिटी है कि नहीं है? हम्म। नेक्स्ट, इक्वल राइट्स टू वोट, हम लोग देखेंगे इक्वल राइट्स टू वोट क्या है नेक्स्ट। ओके, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी भी इसको कहा जाता है। इक्वल राइट्स टू वोट मतलब होता है कि हर कोई व्यक्ति एक समान वोट डालता है, वन वोट वन वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब होता है कि जो जैन साहब ने अभी वोट डाला, वो उसका वोट का जो कीमत है, उनके वोट का जो वैल्यू है वो भी एक ही है, और जो क्या नाम था उसका, कांता, कांता ने जो वोट डाला उसका भी वोट का जो वैल्यू है वो भी एक ही है।
है, दोनों ही एक समान वोट डाले हुए हैं। ठीक है, 1 वोट 1 वैल्यू। ओके, 1 वोट 1 वैल्यू। मेरी दोनों स्क्रीन दिखाई दे रही है ना आपको? हाँ, मैं अभी ब्लैक बोर्ड में, मैं अभी व्हाइट बोर्ड में लिख रहा हूं, आप लोगों को दिखाई दे रहा है? हाँ, तो मैं जब व्हाइट बोर्ड में लिख रहा हूं तो आप लोग देख लेना, 1 वोट 1 वैल्यू। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं जो जैन साहब है उनका वोट का वैल्यू, एंड जो कांता है उनकी उसकी वोट का वैल्यू, दोनों का वैल्यू एक ही समान है, इक्वल है कि नहीं है? ओके, तो ये होता है हमारे इक्वल राइट टू वोट। नेक्स्ट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या है, इसके बारे में आप लोग डिस्कशन कर रहे हैं और आगे भी हर साल इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसका मतलब होता है एनी पर्सन above the age of 18 can exercise their vote during election। आप स्क्रीन को जूम कर सकते हैं इसको देखने के लिए, अगर आपको ठीक से नहीं दिख रहा है तो। एनी पर्सन above the age of 18 can exercise their vote during election without any discrimination on the basis of caste, creed, color, religion, gender, etc। ठीक है, इसका मतलब है कि एवरीवन, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ओके, इसका मतलब है कि हर कोई व्यक्ति जो 18 साल से ज्यादा है, जिसका उम्र 18 साल से ज्यादा हो गया है, वो इलेक्शन के वक्त अपना वोट डाल सकता है। ओके, इलेक्शन के वक्त वो अपना वोट डाल सकता है। उसको रिलीजन के आधार पर या फिर कास्ट के आधार पर या फिर उसके जेंडर के आधार पर या फिर उसके कलर के आधार पर आप लोग नहीं कह सकते कि तुम वोट नहीं डाल सकते, ऐसा तुम उसको कह नहीं सकते। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात है, ये 18 साल से ऊपर हर कोई व्यक्ति इलेक्शन के टाइम पे वोट डाल सकता है, और इसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। इसके ऊपर आपको एक मार्क का या फिर 2 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, ये आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको बताना है। तो इसको हम लोग कहते हैं इक्वल राइट टू वोट। यहाँ पे हम लोग एक वीडियो देखेंगे, ठीक है, एक वीडियो यहाँ पे मैं प्ले कर रहा हूँ, आप लोग देखना कि क्या है इक्वल राइट्स टू वोट। Welcome to the program on elections 2019. Do you know how many votes you're worth? Let us talk to a few voters who are here to exercise their democratic right. Hello, sir. How many votes do you think you deserve? I think businessmen and people like us know the best. We contribute more to the society. We pay taxes, we create jobs. We really know the best. I think I deserve 1,000 votes. Thank you, sir. Happy voting. Yeah. What about you, young man? My generation knows best about what actually is happening around this world. So youth's votes should be count for more. I deserve at least 50 votes. Thank you, young man. Happy voting. What about you, sir? How many votes do you think you deserve? Farmers like me are the backbone of the country. So most livelihood in the country are related to the agriculture and farming. So we should get at least 100 vote each. Thank
Thank you, sir. Happy voting. Everybody who passed us by just now, every single citizen of India above the age of 18 gets just one vote. ओके, आप लोगों ने सुना अभी क्या कह रहे हैं? यहाँ पे जो पहले एजुकेटेड पर्सन आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि क्योंकि हम लोग टैक्स देते हैं, क्योंकि हम लोग एजुकेटेड हैं और क्योंकि हम लोग बिजनेसमैन हैं, तो हमें कम से कम 1000 वोट मिलना चाहिए। हमारा वोट, एक वोट हमारा 1000 वोट के साथ इक्वल होना चाहिए। वाह, कितना अच्छा बात है ना, बहुत अच्छी बात है कि आपको 1000 वोट मिल जाएगा। एक वोट डालेंगे तो आपको 1000 वोट मिल जाएगा। उसके बाद जो यंग पर्सन है ना, वो चश्मा वश्मा लगाए हुए हैं, स्टाइलिश लग रहे हैं, और वो आते हैं तो उनको पूछा जा रहा है कि आपको क्या लगता है वोट आपको कितना मिलना चाहिए, आप किस तरह से वोट देना चाहिए। वो कहते हैं कि हम बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड, हम बहुत ज़्यादा यंग हैं और दुनिया को हम ही लोग समझते हैं, और इसीलिए हमें कम से कम तो 50 वोट मिलना चाहिए, है ना, क्योंकि उनको, वही लोग अभी दुनिया के नए फ्यूचर हैं, यूथ हैं, तो उनको 50 वोट मिलना चाहिए। उसके बाद फार्मर्स आ रहे हैं और फार्मर ये कह रहे हैं कि क्योंकि हम लोग देश को खाना खिलाते हैं, हम लोग बैकबोन है देश के, तो हमें कम से कम 100 तो वोट मिलना चाहिए। एक पर्सन को हमें तो 100 वोट मिलना चाहिए कम से कम। पर ऐसा नहीं होता है। इक्वल राइट्स टू वोट क्या बोलता है, चलो देखते हैं आगे वीडियो को। वीडियो ठीक से तुम्हें दिख रहा है, साउंड ठीक से आ रहा है? ओके ओके, चलो प्ले करता हूं। Doesn't matter if you're a farmer, a student, or a businessman. Doesn't matter if you're a calm and composed person or if you're excited and a sensitive person. It doesn't matter if you're a boy or if you're a girl. It doesn't matter what your religion is. It doesn't even matter if you're a good person or a bad person. If you're voting for someone, it's counted as one vote. It's equally important as every other citizen in the country, including the president and the prime minister and the beggar on the roadside, has just one vote. If you're above 18 years old, you have the right to vote in the elections, and your vote counts just as much as everyone else's. This idea is called the Universal Adult Franchise. But you have to register your name with the election authorities and go to... ओके, समझ में आया ये वाला अभी? यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे हम लोगों को पता चल रहा है कि जो वोट्स है इसमें किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। ओके, फॉर एग्जांपल president and prime minister, they will also stand in the queue and vote during election. If you are female or male, you can vote. If you are beggar, you still have one vote. If you are a criminal, you still have one vote. So in our country, every person without any discrimination can practice their vote during election, but they have to be at least 18 years and above the age. Next thing is they have to register their names in election commission of India, okay, जिसको हम लोग कहते हैं ECI, and they will have to get an e-pic. okay, आप लोग अपने पापा से उनका वोटर कार्ड मांगना और देखना उसमें क्या क्या चीज़ आपको मिलता है, ठीक है, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। आप अपने पापा से या मम्मी से अभी जाइए और पूछिएगा इस क्लास के बाद कि क्या क्या चीज़ वोटर कार्ड में रहता है, आप लोग उसको देखिएगा। ओके, the right polling booth to cast your vote. It involves a bit of paperwork, but it is worth it. Isn't that a nice concept to think about? Everybody is equal. We are all the same. The Indian Constitution agrees too. It says, the state shall not deny to any person equality before the law. If the evidence proves that a person has committed a crime, then he or she will be punished
irrespective of their wealth, power, or position. We are all subject to the law equally. Doesn't matter where you're born, what religion you follow, or how much money you have. Well, I hate to break it to you guys, but people are rarely ever treated equally in the country. Even though the law says otherwise, inequality is everywhere in India. People are discriminated based on their religion, their race, their caste, their gender, or even their place of birth. Can you have a democracy where people are unequally valued? No. If every eligible voter did not get an equal say in electing the government, the whole idea of democracy would be pointless. The main idea of democracy is to give the power to the people. But if that power is divided unequally among the people, the whole point is defeated, isn't it? To make democracy work, we need to get rid of discrimination and inequality. It is a step-by-step process. Democracies started this process with the idea of one vote per person and one vote for every person. Universal adult franchise. If you like this video and want to watch ओके, आप लोगों को समझ में आया कि हमारे देश में वोटिंग जो है ना वो हर किसी को इक्वली मिला हुआ है और हर कोई व्यक्ति वोटिंग इलेक्शन के टाइम कर सकता है। ओके, इसमें इसमें आप लोगों को किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन क्या सही मायने में हमारे देश में इक्वलिटी है? एक्चुअली में हमारे देश में सही मायने में इक्वलिटी नहीं है। हर तरह पे हर किसी फ्रंट पे आप लोग इनइक्वलिटी को देख सकते हैं। आपके घर में, आपके घर के आस पड़ोस में, इवन आपके साथ भी इनइक्वलिटी होता रहेगा। आप लोग अगर नोटिस करेंगे, आपके पेरेंट्स भी आपके साथ कभी कभी इनइक्वलिटी करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, बॉयज़ को थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है, देखा होगा आप लोगों ने, थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है ना कभी कभी। तो वो आप लोग नोटिस कर सकते हैं आपके घर में, आपके बाहर में, कहीं पर भी जॉब करने के लिए हो जाए, चाहे रात में घर से बाहर जाने के लिए हो जाए, ठीक है, आप लोगों को देखना थोड़ा सा इनइक्वलिटी देखने को मिल जाता है। अगर हम लोग सोशली भी बात करें तो कुछ लोग गरीब जो होते हैं उनको किस तरह से ट्रीट किया जाता है, दुकान में जाते हैं तो उनको किस लैंग्वेज से बात किया जाता है, फिर जब पुलिस थाने हो गया, हॉस्पिटल हो गया, कहीं पर भी जाएंगे तो जो गरीब होते हैं उनके साथ कैसे बर्ताव, एक बिहेवियर किया जाता है, ठीक है, आप लोग नोटिस करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा फर्क रहता है। ओके, we shall learn more about other kinds of equality in our next class. This is all for today. Thank you. हाँ, अभी पूछ सकते हो आप लोग। प्लांट्स आप लोग स्कूल में लगाएंगे। टाइमिंग होगा आपका सुबह 10 बजे। सुबह 10 बजे से हम लोग प्लांट्स लगाना शुरू करेंगे और लगाएंगे जब तक लगाएंगे। नहीं, संडे ही रहेगा ना, संडे को हमारा क्लास कैसे होता है? नहीं होता है क्लास। संडे हमारा क्लास तो नहीं होता ना भाई। थैंक यू।
बाय बाय। आप लोग अपने दोस्तों को फोन करके बताइए, है ना। जो लोग ऑनलाइन क्लासेस में नहीं आते हैं, जो लोग ऑनलाइन क्लासेस में नहीं आते हैं उनको बताइए प्लांट्स लगाना है, और घर से एक एक प्लांट्स लेके आना भी है। थैंक यू, बाय।